پیچھے رکھو باقی سب اچھا جی ریڈی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کئی چیزیں سامنے موٹی میں چیزیں آپ کو بتا دوں گا. ایک تو فاٹا کا جو اور پختونخوا کا جو مرجر ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز تھی. یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے یہ مرجر نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ایک انتشار اٹھ سکتا ہے کیونکہ وہاں ایک خلا ہے اس کے اندر ہمارے دشمن آپریٹ کر سکتے ہیں اور ایک طرف جو شکایتیں ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں کی اور بڑی جینون شکایتیں ہیں کیونکہ وہاں ان کے ساری جو 15 سال بعد تباہی مچی ہے ان کا گھر بار ان کا کاروبار تباہ وہ ان کی دکانیں تباہ اور پھر آئی ڈی پیز رہے ہیں وہ اور جس طرح ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے. اس لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ تھا کہ فوری طور پہ مرجر کیا جائے اور پھر وہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروایا جائے اور ڈیولپمنٹ کی جائے, پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, وہاں پروجیکٹ شروع کریں. اور اس وقت صرف اور صرف اس لیے یہ جو گورنمنٹ نے 2016 شروع کی تھی فاٹا ریفارمز صرف اور صرف اس لیے وہ نہیں ہوئی کیونکہ اچکزئی اور فضل الرحمان کی وجہ سے. اور اس لیے ایک بڑا خطرناک سیناریو تو ہم نمبر 1 چیز یہ. نمبر 2 ہم نے یہ جو فیصلہ کیا آج کہ جن لوگوں نے ہم پوری تحقیقات کر رہے ہیں, ہم اپنے وکیلوں سے بات چیت کر رہے ہیں, جن لوگوں نے اپنی سینٹ میں ہمارے ایم پیز نے ووٹ بیچی تھی, ہم جس وقت ہم مطمئن ہو گئے اپنے وکیلوں سے کہ ہم ان کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں, ہم ان سب کو پارٹی سے نکالیں گے. ہم نے انشاءاللہ ایک ایسا جلسہ کر رہے ہیں بتانے کے لیے کہ پبلک کس کے ساتھ. اس جلسے کا مقصد ایک ہے کہ جس طرح کی اٹیک کیے گئے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کو جب سے انہوں نے ایک مافیا کے خلاف فیصلہ دیا. ایک انسان نہیں ہے نواز شریف, ایک نظریہ نہیں ہے, ایک مافیا کا نام ہے. انہوں نے جس طرح سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملایا, پیڈ اینکرز نے ان کی مدد کی, پیڈ کالمنسٹ نے ان کی مدد کی, انہوں نے اس میں ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر نے مدد کی. کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اپنی عدلیہ کے اندر اپنے سپریم کورٹ کے خلاف جا رہا ہے ایک کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے. اس میں ان کے وزیر سارے شامل تھے, اور وزیر کیسے کہ اب خواجہ آصف جس کا ہائی کورٹ کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پتہ چلا ہے کہ 16 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے رہا تھا ایک کمپنی سے جس کا ملازم تھا وہاں, اور وہاں اس کے بعد بینک اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں جو ہائی کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں, اور جدھر منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی بینک اکاؤنٹ کے اپنی بیوی کو نیو یارک کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ بھیجا جا رہا تھا. یہ 7 مہینے سے بیٹھا ہے, نہ کبھی کسی پرائم منسٹر کو فکر ہوئی اس چیز کی کہ ملک کا فورن منسٹر ایک امپلائی ہے کسی دبئی کی کمپنی کا, نہ پارلیمنٹ نے کچھ کہا, نہ ان کے وزیروں نے کچھ کہا, نہ پاکستان کی ایجنسیز نیب ایس ای سی پی وہ کچھ, کیونکہ سب مافیا کا حصہ ہے. ادھر تیسری وہ بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اینڈ سنز کرپشن لمیٹڈ کمپنی, وہ پورے وہاں بیٹھ کے 56 کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, اپنے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں, 4 کانٹریکٹرز کے لیے سارے کانٹریکٹ دیتے ہیں, اربوں روپیہ کما رہے ہیں. تو یہ سارا مافیا اکٹھا ہو کے اس سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے صرف اس لیے
चोरी बचाने के लिए। हमने फैसला किया है कि पाकिस्तानी कौम को इनवाइट करेंगे, आप मीनार पाकिस्तान आए, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि सारी पाकिस्तान की कौम आज हमारी अदलिया के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि कौम इसलिए खुश है कि पहली दफ़ा यहाँ ताकतवर का इंतसाब हुआ है। आप जाके जेलों में देखें, सिर्फ गरीब लोग हैं। साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, भैंस चोरी पे भरे हुए हैं जेल, छोटी छोटी चोरियों पे। या अरबों रुपया मुल्क से बाहर ले गया और उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से लेके वजीरों से लेके मीडिया हाउसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी कौम को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मीनार पाकिस्तान आएँ और बताएं कि आप खुश हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है, मैं अभी जो निकला हूँ मेंबरशिप कैंपेन में, तारीखी पब्लिक निकलने वाली है और इंशाअल्लाह 29 को आपको पता चलेगा कि कौम किधर खड़ी है, कौम कितनी खुश है सुप्रीम कोर्ट के साथ। हमने ये भी फैसला किया, आज रेजोल्यूशन पास की कि कोई मैंडेट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को, बजट 45 दिन रह गए, आप बजट पास कर रहे हैं 1 साल का। यानी जो डेमोक्रेसी होती क्या है कि एक गवर्नमेंट अपना मंशूर दे के आती है, पार्टी मंशूर दे के पावर में आती है और फिर वो बजट रिफ्लेक्ट करता है कि वो उसका मंशूर क्या है। मसलन एक पार्टी अमीरों पे पैसे खर्च करती है, एक गरीबों पे खर्च करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है कि ये जो 45 दिन में अगले 1 साल का बजट दे दें? हम बिल्कुल इसको अपोज करेंगे। हमने पख्तूनख्वा में फैसला किया है कि परवेज खटक नहीं बजट देंगे, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है अगली गवर्नमेंट का बजट देने के लिए। हम आज इसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास की। और ओवरसीज पाकिस्तानी, हम चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है ओवरसीज पाकिस्तानी। आज वो 19-20 अरब डॉलर साल के ना भेजें तो हमारा मुल्क तो वैसे ही आज मकरूज होता जा रहा है, तारीखी कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। तो हम बड़े खुश हैं कि चीफ जस्टिस अब कोशिश कर रहे हैं इनको वोटिंग राइट्स देने के लिए। या हम पूरी तरह कंडेम करते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने ज़बान इस्तेमाल की ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हमें हाथ उठा के शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका पैसा ना आए ये मुल्क कैसे चले? और इंशाअल्लाह जब ये मुल्क का हम निज़ाम ठीक करेंगे, गवर्नेंस ठीक करेंगे, सबसे ज़्यादा मदद ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी करेंगे या मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। खान साहब जी, खान साहब निगरान हुकूमत की जेल की सफाई हमारे लिए नहीं, मुशर्रफ के लिए हो रही है, क्या कहेंगे? पटियाला जेल की सफाई हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों जनाब, ये कोई खास आ रहा है कि आप अगर 300 अरब मुल्क का चोरी करें तो आपको साफ जगह मिलेगी और अगर गरीब साइकिल चोरी करें तो आप बेचारे वहाँ ठोकरें खाएंगे जेल में? ये क्यों सफाई हो रही है? यही है अलमिया, ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए ये दूसरा। इंशाल्लाह इसलिए पब्लिक निकलेगी 29 को, पब्लिक बताएगी कि ये ताकतवर को भी वो खुश हैं कि अदलिया ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। खान साहब, निगरान हुकूमत के क़याम पर आप काफ़ी जोर दे रहे हैं वज़ीर आज़म पर, लेकिन कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन लीडर से मशावरत कर सकती है, जोर नहीं डाल सकती। आफ्टर ऑल नाम जो है वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने तय करने। अगर वो आपकी मर्जी का नाम ना हुआ तो क्या आइंदा का लाएमल होगा अगर वो दोनों ने, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ने, नाम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया? देखें, निगरान हुकूमत यूरोप में क्यों नहीं आती, बरतानिया में क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि वहाँ धांधली का खौफ नहीं था। यहाँ निगरान हुकूमत इसलिए आती है कि 1977 में एक इंतशार हो गया मुल्क में धांधली के ऊपर और उसके बाद फैसला किया गया कि एक निगरान हुकूमत ही आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। अब पिछली बारी क्या हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने मुकबका कर लिया, दोनों पार्टीज ने, इन्होंने अपने अपने अंपायर खड़े कर दिए और कभी भी तारीख में नहीं हुआ कि एक इलेक्शन को सारी जमातों ने कहा धांधली हुई है। 22 जमातों ने कहा कि 2013 का इलेक्शन धांधली शुदा था, मतलब कि निगरान हुकूमत फेल हो गई। निगरान हुकूमत का तो काम ही इलेक्शन करवाना है साफ और शफाफ। लिहाजा पिछले तजर्बे से सीख के इस बारी जो निगरान हुकूमत बने वो मुशावरत से बने और न्यूट्रल अंपायर हो। सबको न्यूट्रल अंपायर का मतलब कि जो सारे प्लेयर खेलने वाले हैं सबको इत्मीनान हो उस गवर्नमेंट के ऊपर। खान साहब, ये देखिए
साउथ पंजाब में नून लीग के काफ़ी सारे लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने जनूबी पंजाब मास के नाम से नया प्लेटफॉर्म बनाया, तो वो लोग आपकी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे या आप उनको शमूलियत की दावत देते हैं, आप उनके साथ राब्ते में हैं? देखिए मेरा ये पहले तो जनूबी पंजाब का कि कोई भी जो जनूबी पंजाब से हो गया है, कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी जिसमें जो मुनसिफाना ज़हन रखता है कि वहाँ उनको उनके हुकूक के लिए एक अलहदा सूबा बने। दूसरा, ये होता ही नहीं है कि तीन सूबे एक तरफ और एक सूबा एक तरफ, ये फेडरेशन ऐसे नहीं चलती। लिहाजा ये मुल्क की अब ज़रूरत है कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए, और अगर फिर भी अगर बेहतर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता, यानी कि अगर जब 18th अमेंडमेंट में इक़्तिदार गया सेंटर से गया सूबों में, अब सूबों से नीचे जाना चाहिए था, जिस तरह पख्तूनख्वा में गया। वाहिद सूबा है जिधर एक जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट आई है, या ना सिंध में लोकल गवर्नमेंट है ना पंजाब में है, वहाँ तो इन्होंने इख्तियारात ही नहीं दिए। इसलिए बड़ी जायज़ लोगों की कंप्लेंट है कि जो बजट है सारे पंजाब का 57% लाहौर पे खर्च कर दिया इन्होंने, तो वहाँ तो वो उनके शहरों की तबाही, उनके देहाती इलाकों का बुरा हाल है, उनकी गुर्बत देख लें। आज जनूबी पंजाब एक गरीब इलाका नहीं था, एक पाकिस्तान का अमीर इलाका था, वो आज उनके हालात देख लें। तो वो ये तो जो इन्होंने हुकूमत की है पंजाब में पिछले 10 साल, इन्होंने ही ये लाजिम कर दिया है कि अब वहाँ सूबा बनेगा। और जो ये बात है ना छोटे छोटे ग्रुप्स बनने की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अब नज़रियाती सियासत होनी चाहिए। नज़रियाती सियासत का मतलब ये कि जो इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं और पावर में आके अपने आप को नीलाम कर देते हैं, एक नज़रिए के तहत वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो सकती है। हमारे मुल्क में नज़रियाती सियासत ख़त्म की गई 1985 में, जब नॉन पार्टी बेस इलेक्शन करवा दिए। हम वापस चाहते हैं कि उसी पे एक पार्टी आए, मंशूर लेके आए, उसके ऊपर वो वोट ले। ये जो छोटे छोटे धड़े बनना, अगर हम भी ये समझते हैं कि जनूबी पंजाब का ज़िला बनना चाहिए, तो उनको क्या है इशू हमारे अंदर ज्वाइन करने का? अच्छा खान साहब सपोर्ट करेंगे अगर फाटा से निगरान वज़ीर आज़म आया? हमने तो फाटा से ये भी कहा था कि सेनेट का डिप्टी चेयरमैन आना चाहिए। बदकिस्मती से हमें ओवर रूल कर दिया, हमारे पास सिर्फ 13 वोट्स थी, इसलिए हम ओवर रूल हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फेडरेशन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जो हम बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि बलूचिस्तान से सेनेट के चेयरमैन आए, उसी तरह फाटा को मेन स्ट्रीम करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो मैं अब से नहीं कह रहा, मैं 2 सालों से लगा हुआ हूँ कहने कि वहाँ इतनी बड़ी वैक्यूम है फाटा के अंदर, इसमें बड़ा आसान है हमारे दुश्मनों को वहाँ लोगों को प्लांट करना और वहाँ तहरीक चलाना, और फिर एक और ज़रबे अज़ब नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ा जुल्म किया है ये नवाज शरीफ, अचकज़ई और फजल रहमान ने कि इन्होंने मर्जर नहीं होने दी। खान साहब तेजी से इलेक्टेबल्स आपकी पार्टी में आ रहे हैं, जबकि आने वाले इलेक्शन में आपके टिकट का क्या तरीक़ाकार होगा? जिन लोगों ने पहले लड़ा था उनको देंगे, इनको देंगे, क्या फर्क? देखिए जी, पहले तो ये हमारे भी कई पुराने पार्टी में अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो पार्टी नज़रिया से हट गई है, उनको टिकट मिल जाए तो वो नज़रियाती पार्टी है। तो ये जो बात इलेक्टेबल्स की करते हैं, ये क्या है? इलेक्टेबल्स का मतलब जिसको इलेक्शन लड़ने की साइंस आती हो, वो पार्टी का भी हो सकता है, वो एक इलेक्टेबल ईमानदार भी हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है। लेकिन इलेक्शन लड़ने की साइंस अगर आपको नहीं आती हो, आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते? 2500 तो आपको वर्कर चाहिए एक हल्के के अंदर पोलिंग डे के ऊपर। तो 2500 अगर आपके पास वर्कर ही नहीं है और आप कहें जी मैं नजरियाती और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना आपके पास 2500 वर्कर हैं, ना आपके पास वसाइल हैं कि वोटर को लाए पोलिंग बूथ पे और कहें जी मैं इलेक्टेबल मैं नजरियाती हूँ। इसलिए हम प्रेफरेंस देंगे, हम उसको आगे करेंगे जो कि पार्टी का वफादार नजरियाती है लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ना चाहता। लेकिन अगर वो नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता तो हम क्रिकेट का मैच हॉकी टीम से तो नहीं खेलेंगे। किसकी? बैलेट पेपर के हवाले से बैलेट पेपर नहीं, आज उसकी बात नहीं। और जी ओके जी, थैंक यू।